Children wearied up to the backlash. After that, we have the appointment of the new leader. So, after creating mayhem in Meerut, the soldiers rode throughout the night of the 10th May and reached Delhi the next morning. When the regiments in Delhi heard the news, they also rose up in rebellion. The soldiers gathered around the Red Fort and demanded to meet Bahadur Shah Zafar. The emperor was hesitant to challenge the might of the British, but the soldiers persisted in their demand. They forced their way into the palace. They proclaimed the बादशाह as their leader. So मेरठ से लोग चले थे रिबेल करते हुए, बगावत करते हुए, और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने रेड फोर्ट के बाहर अपनी धरना दी और उसमें मांग उठाई कि बहादुर शाह जफ़र भी उनके इस रेबेल में उनके साथ रहे, उनके न्यू लीडर रहें. सो बहादुर शाह जफ़र थोड़ा सा पहले डरे और फिर बाद में उन्होंने उस रेबेल का लीडिंग की. The emperor had no choice but to agree to their demand. He wrote letters to all the chiefs and rulers to the country to come forward. He asked them to form a confederacy of Indian states to fight the British. This step of the emperor had great implications. So इस तरह से बहादुर शाह जफ़र रिबेल में इन्वॉल्व हुए. उन्होंने रिबेलियन जो भी कर रहे थे लोग, मेरठ से स्टार्ट हुआ, उसमें उनका साथ दिया और उनके न्यू लीडर के फॉर्म में बाहर आए, सामने आए. Next is the political importance of Bahadur Shah Zafar. It is important to remember that Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country for a long period. Most of the smaller rulers and chieftains had been ruling over their territories on behalf of the Mughal ruler. They hoped that if the Mughal ruler could once again resume power, they would be able to rule their own territories once again. So लोगों को लगता था कि मुगल डायनेस्टी जिस तरह से कई साल तक कई ज़्यादा एरिया पे पूरे ऑल ओवर ऑलमोस्ट इंडिया पर रूल करती गई. सो लोगों को ये लगा कि जिस तरह से मुगल डायनेस्टी पूरे कंट्री पर रूल की है, सो अगर वो फिर से पावर में आ जाएंगे तो उनकी टेरिटरीज जो जा चुकी है वो वापस उनको मिल जाएगी. सो इस तरह से मुगल डायनेस्टी का रूल बढ़ाना चाह रहे थे लोग. The British had initially taken the revolt at Meerut quite lightly, but the decision by Bahadur Shah Zafar to support the rebellion had dramatically changed the entire situation. People were emboldened by an alternative possibility. So लोगों को ये एक उम्मीद जाग चुकी थी कि अगर बहादुर शाह जफर या मुगल डायनेस्टी का कोई भी रूलर अगर सामने आएगा तो वो जीत जाएगा और उनको जो उनकी टेरिटरीज छीन ली गई थी वो वापस मिल जाएगी. So the spread of the rebellion started from Meerut to all over the world, country. Spread of rebellion, कैसे बगावत पूरे देश में फैली. The rebellion gradually spread to other parts of the country. Various regiments mutinied and marched to join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur and Lucknow. The people in the towns and villages also revolted and rallied around local leaders, zamindars and chief. For the local leaders, zamindars and chief, it was an opportunity to assert their authority. हर किसी के लिए अलग अलग तरह से ये रेबेलियन, एक रिबेल जो था, ये बगावत जो थी, हर लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी. सो लोकल जो थे, जो ज़मींदार थे, जो चीफ्स थे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि जो उनकी अथॉरिटी जा चुकी थी वो वापस उनको मिल जाएगी. नाना साहब gathered armed forces and expelled the British garrison from the city of Kanpur. He declared himself as a governor under the Mughal emperor. नाना साहब जो पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे, उनको लगा कि उनको अब उन्होंने अपने आप को गवर्नर बना दिया मुगल डायनेस्टी के अंडर. Birjis Qadr proclaimed himself the new Nawab in Lucknow. He was the son of the deposed Nawab Wajid Ali Shah. He also acknowledged the Hazrat Mahal actively organized the uprising against the British. His mother Begum Hazrat Mahal, means Bahadur Shah Zafar's wife, or actively organized the uprising against the British. So women was also involved in this rebellion. Rani Lakshmi Bai joined the rebel sepoys in Jhansi. She fought the British along with Tantia Tope, who was the general of Nana Saheb. So हर तरह ये रेबल फैल चुकी थी पूरे ऑल ओवर कंट्री में और लोग हर अलग तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे रिबेल में. वाइड स्प्रेड रिबेलियन, बहुत तेज़ी से ये रेबल फैल रहा था. द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाय द रिबल फोर्सेज. दे गॉट डिफीट इन द नंबर ऑफ बैटल्स. द चेंजिंग सिचुएशन कन्विंस्ड द पीपल दैट द ब्रिटिश रूल हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड. दिस गेव देम द कॉन्फिडेंस टू जॉइन द रिबेलियन. सो जब ये रेबल पूरे कंट्री में स्प्रेड हुआ,
सो जब धीरे धीरे लोगों ने देखा कि ये रिबल से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ब्रिटिशर्स पीछे हट रहे हैं कुछ जहाँ पर ब्रिटिशर्स हार रहे थे उनसे लड़ाई में, तो धीरे धीरे लोग और एक्टिवली इसमें ज्वाइन होते गए और ये रेबल को बहुत तेज़ी से फैलाया जा रहा था। वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप्ड स्पेशली इन द रीजन ऑफ अवध। अवध जिसको ब्रिटिशर्स ने पहले कैप्चर किया था, अवध वो एरिया था, पहले सेंट्रल इंडिया बोलते थे, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सब के एरियाज़ को मिला के अवध बोलते थे। इसको लोगों के अंदर एक इस तरह के जब रिबेल आया तो लोगों ने अपने एरियाज़ को छुड़ाने के लिए, जो राजा महाराजा थे जिनका पावर खो चुका था, वो सब एक्टिवली पार्टिसिपेट हुए और अपने एरिया को वापस लेने के लिए लोगों ने रिबेल में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। द राइज ऑफ न्यू लीडर्स, ऐसे टाइम में नए नए तरह से लीडर्स बाहर आए। सो अहमदुल्ला शाह वॉज अ मौलवी फ्रॉम फैज़ाबाद। ही prophesied that the end of the rule of the British was imminent. A large number of supporters rallied behind him. He came to Lucknow to fight the British. A large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people in Delhi. Bakht Khan was a soldier from Bareilly. He took charge of a large for Kunwar Singh was an old zamindar in Bihar. He joined the rebel sepoys and battled with the British for many months. So he was the Bakht Khan. So like this, the new rulers they came to forward in the rebel. The company fights back. Company means जिस तरह से रिबल तेजी से फैल रहा था, सो ब्रिटिशर्स भी इनके अगेंस्ट अपने फाइट तैयार कर रहे थे, इसीलिए लिखा है द कंपनी फाइट्स बैक। कंपनी मीन्स यहाँ पर ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। काउंटर अटैक, काउंटर अटैक मीन्स उनके बदले में क्या उन्होंने किया, ब्रिटिशर्स ने क्या अटैक किया। द कंपनी डिसाइडेड टू सप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट। कंपनी ने, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने रिवोल्ट को, जो बगावत हो रही थी, उसको बंद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। Reinforcement was brought in from England. New laws were passed to make it easy to convict the rebels. नए नए तरीके के कानून बने जिससे जो बगावत करने वाले थे उनको किस तरह से अरेस्ट किया जाए, ये न्यू लॉ बनने लगे। The company then moved forces into the storm centers of revolt. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857. दिल्ली को फिर से कैप्चर कर लिया गया। सो नए लॉ बना के दिल्ली को फिर से कैप्चर करके मेन मतलब ये था कि कैसे रिबेलियन को का काउंटर अटैक किया जाए और उनको ऑप्रेस किया जाए, दबा दिया जाए। अरेस्ट ऑफ द लास्ट मुगल एम्परर, कैसे बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया गया लास्ट टाइम में। बहादुर शाह जफर वॉज अरेस्टेड। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बहादुर शाह जफर लीड कर रहे थे, क्योंकि मेरठ से लोग चल के दिल्ली पहुंचे थे और वहाँ पे उन्होंने डिमांड उठाई थी कि बहादुर शाह जफर उनके लीडर बनेंगे। सो लीडर को ही अरेस्ट कर लिया गया। ही वॉज ट्राइड इन अ कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। हिज सन्स वर शॉट डेड बिफोर हिज आइज। उनकी आंख के सामने उनके बेटों को गोली मार दी गई। ही वॉज सेंट टू प्रिजन इन रंगून अलॉन्ग विद हिज वाइफ बेगम जीनत महल इन अक्टूबर 1858। द लास्ट मुगल एम्परर डाइड इन द रंगून जेल इन नवंबर 1862। इस तरह से लास्ट मुगल एम्परर की डेथ हुई और उनके बेटों को गोली मार दी गई, शॉट डेड हो गए बेचारे, ताकि अगले कोई भी मुगल डायनेस्टी का कोई भी रूलर बचा ना रहे। लॉन्ग बैटल, उसके बाद काफ़ी लंबी लड़ाई चली। इट टुक ऑलमोस्ट 2 years completely control the situation. Lucknow was recaptured in March 1858. Rani Lakshmibai was killed in a battle in June 1858. Tantia Tope escaped to the jungles of central India. He continued to wage a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried and killed in April 1859. So इस तरह से बहुत लंबी लड़ाई चली। बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया गया, उनको मार दिया गया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद तांत्या तोपे। इस तरह से धीरे धीरे जो उस टाइम के न्यू लीडर्स उठे थे उन सब को ब्रिटिशर्स ने मार के ख़त्म कर दिया। सो इस तरह से आप देखेंगे कि एक मैप है, जैसे रेड जो है वो मेन सेंटर्स है, ब्लैक जो है वो अदर सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, कैसे कैसे पूरी कंट्री में स्पेशली नॉर्थ साइड में कहाँ कहाँ रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। शिफ्टिंग लॉयल्टीज कैसे कैसे चेंज हुई लॉयल्टीज। द डिफीट ऑफ द रिबल फोर्सेज इनकरेज डिसर्शंस फ्रॉम द रैंक ऑफ द रिबल फोर्सेज। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड टू विन बैक पीपल्स लॉयल्टी। सो शुरू में ब्रिटिशर्स ने अपनी लॉयल्टी, अपनी जो वफादारी थी वो खो दी थी रिबल के थ्रू। लोगों में उनके खिलाफ बहुत सी नेगेटिवनेस भर चुकी थी। सो उनका मेन अब टारगेट था ब्रिटिशर्स का कि अगर वो रूल करने जा रहे हैं इंडियंस पे तो इंडियंस के थ्रू उनको लॉयल्टी होनी चाहिए। सो कैसे कैसे उनके ऊपर भरोसा आ जाए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की। रिवॉर्ड्स आर अनाउंस फॉर लॉयल होल्डर्स। द लॉयल लैंड लॉर्ड्स
वर अलाउड टू एन्जॉय द ट्रेडिशनल राइट्स ओवर द लैंड। सो जो ज़मींदार थे उनको कहा गया कि अगर आप उनके थ्रू लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे, तो उनको वो राइट मिल जाएगा कि वो अपने ट्रेडिशनल जो पहले से चला आ रहा है वो राइट्स अपना वो एंजॉय कर सकते हैं। The rebels were told that if they submitted to the British, they would remain safe and their claims and rights would not be denied. Rebels को कहा गया, जो बगावत पे उतर रहे थे उस टाइम, उनसे कहा गया कि अगर वो अपने आप को ब्रिटिशर्स के को दे देंगे, मतलब उनके लिए काम करेंगे, तो उनको उनकी राइट्स मिलेंगे और वो सेफ रहेंगे। But there was a condition that they had not killed any white people. Hundreds of सिपाहीज, rebels, नवाब्स and राजाज were tried and hanged. जिन लोगों ने बहुत रिबेल किया था, जो लोग ब्रिटिशर्स की निगाह में आ चुके थे, पॉइंट हो चुके थे, उन लोगों को जब रिबेल डाउन हो गया, ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और उन लोगों को फांसी की सजा दे दी। आफ्टर मैथ उसके बाद क्या हुआ, द ब्रिटिश कुड रीगेन द कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। फिर से ब्रिटिशर्स ने पूरी कंट्री पर अपना कब्जा कर लिया बाय 1859। बट द सिचुएशन हैड चेंज्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू रूल द कंट्री विद देयर अर्लियर पॉलिसीज। मेनी चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। वो लोगों ने कैप्चर तो किया इंडिया को फिर से, लेकिन उस तरह से नहीं रन कर पा रहे थे जैसे कि रिबेल के पहले रन करते थे। A new act was passed in 1858 by the British Parliament. A new act transferred the powers of East India Company to the British Crown. This was done to ensure a more responsible management of Indian affairs. So पहले जो पावर्स था वो कंपनी के पास था, ब्रिटिश कंपनी के पास था। उसके बाद वो पावर्स चेंज होके किसके पास आ गया, ब्रिटिश क्राउन के पास, मतलब किंग और क्वीन के पास आ गया। A member of the British cabinet was appointed as a Secretary of State for India. He was given the responsibility of all matters related to the governance of India. A council called the Indian Council was given to him. The title of Governor General of India was changed to the title of Viceroy of India. The Viceroy was a personal representative of the British Crown. So पहले काफ़ी चेंजेस हैं, उस चेंजेस में टाइटल भी चेंज हुआ। जो इंडियन काउंसिल होता था, जो गवर्नर जनरल होता था हर जगह का, उसका नाम बदल के टाइटल हो गया वाइसरॉय, और इस तरह से पावर्स को चेंज किया गया। Thus, the British government accepted the direct responsibility of the ruling over India. All ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. They could not pass on their kingdoms to their heirs, including adopted sons, but they had to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. The Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates of the British Crown. So, पावर जो चेंज हुई उसमें दिया गया कि किसी भी स्टेट का जो सबसे ज़्यादा हाई पोस्ट होगी वो ब्रिटिशर्स होगा, और उसके अंडर में सबॉर्डिनेट कोई अगर छोटी मोटी पोस्ट होगी तो वो इंडियंस की होगी। इस तरह से पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। A decision was taken to reduce the proportion of Indian soldiers in the army and to increase the proportion of European soldiers. A decision was also taken not to recruit soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India. The decision was to recruit more soldiers from among the Gurkhas, Sikh and Pathans was taken. So जिन जहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था वहाँ के लोगों को मना कर दिया कि वहाँ के लोग सोल्जर्स रिक्रूट नहीं होंगे, बाकी जहाँ के लोग रिक्रूट होंगे, लेकिन वहाँ के सोल्जर्स जहाँ से रिबेल स्टार्ट हुई थी वहाँ के लोगों को सोल्जर्स में रिक्रूटमेंट नहीं होगा। The Muslims were treated with suspicion and hostility, and their land and property were confiscated on a large scale. The British decided to respect the customary religious and social practices of Indians. Policies were made to protect the landlords and zamindars and given them security of rights over their lands. So इस तरह से ब्रिटिशर्स ने चेंज किया लॉज को और उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जो लोग लड़ाई में उनके साथ थे या उनसे ज़्यादा ताकतवर थे। So we are going to have the summary of the chapter. So these all are the summary of the chapters. You read it and see all the points are described here with the points of your NCERT book.